Hello, everyone. Okay, we are now live, and let me see. Just give me 1 minute. Good evening, everyone. Good evening, बच्चों. So, how's the Josh? High or low? अरे क्यों इतना लो जा रहा है आज का? तो लगा मुझे सेशन आपके थोड़े कंफर्ट जोन में होने वाला है, बिकॉज कंपनी लॉ इज वन सच थिंग जो बड़ा कंफर्टिंग टाइप का लगता है ना. मैम एक्सप्लेन इन इंग्लिश. इंग्लिश हिंदी वाली रिक्वेस्ट शुरू हो गई. ओके. गुड इवनिंग हेबा, पूजा, किशन, नतन. Good evening, Muskan, Itishri, Shivam, Kishan. I can see a lot of new names also today. Ashika, VKO Gaming. वाह क्या क्या नाम रखते हो यार. सीए इंटर के लाडले. सीएमए इंटर के लाडले. I'm so sorry. Good evening, भावना, विकास, सुधीर, किशन, सोनी. Good evening, everyone. Nitin, ma'am, I'm from South, so please use some English, ma'am, please. Of course, I use a mix of Hindi and English, so don't worry on that part. Josh is high, that's good. And moreover, you can definitely attend the session because at least the questions are going to be in English only. है ना? So question and answer. तो वो तो इंग्लिश में ही होगा ना. नेवर माइंड, नेवर माइंड. लॉ में डर लग रहा है. डर लगना अच्छा है, मैंने पहले भी आपको बोला है. आपकी वॉइस बहुत क्यूट है मैम. थैंक यू. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन. मैम प्लीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी एमसीक्यू करा दीजिए. सी वी हैव 3 सेशन ऑन एमसीक्यूज बच्चे. द वन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इज ऑफ इंडस्ट्रियल लॉज एंड एथिक्स विच वी कवर्ड ऑन 18th May. If you haven't seen it yet, you can go and check that out. Today we are going to do company law, and thereafter on 22nd we'll have a session on commercial law. So we are trying to cover the entire syllabus, right? Okay. Yes, I will keep a session on long answers also. I'll teach you how to write. You just stay tuned and everything will be done, right? I'm not ignoring anyone's comment. I don't know how. Acha, yeah. Okay, never mind. I've already answered your comment. Fine. See, the revision videos have already been uploaded, so you can check them out. As far as question writing and all that is concerned, MCQs we are doing, and the detailed answers we'll be doing later, right? Okay. So I'll give you tips and tricks to do that. Not to worry. Let's begin our session without wasting any more time, है ना? Because आज का हम session थोड़ा जल्दी जल्दी करने वाले हैं. थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग द एफर्ट्स. अच्छा लगता है जब आप लोग ये बात बोलते हो, और अगर आप लोगों को सच में लग रहा है दैट आई एम पुटिंग इन सम एफर्ट्स, देन प्लीज लाइक बिफोर वी बिगिन, है ना? तो ये तो हमारा वैसे भी रूल है. चलो, so we will start today. I have a set of 50 questions with me, right? 50 questions में से 30 questions we are going to discuss, and 20 questions which are extremely easy you are going to do after the session. So the rules remain the same. No writing of answers in the chat. We'll create a poll and you can participate in the MCQ through the poll, है ना? तो poll live होगी. poll नहीं भी मिल रही है तो क्या करना है, पेपर पेन लेके बैठे हुए हो आप और वहां पे लिखते जाना और मैच करते जाना है कि कितने आंसर्स मेरे सही होते हैं और कितने गलत होते हैं. द पीडीएफ विल बी शेयर्ड आफ्टर द सेशन. ठीक है? तो फिलहाल क्या होगा, फिलहाल आपको इस तरीके से क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेंगे और एक पोल क्रिएट हो जाएगी और उस पोल के थ्रू यू कैन answer, right? So good evening everyone. If I've missed out, I think I've missed out a lot of people. पोल कैसे होगा भाई? पोल क्रिएट हो जाएगा, अभी दिख जाएगा, चिंता मत करो. Okay, चलो. So here we begin. Come on everyone. जोश एकदम हाई ही रखना है, because this is the time जब आप सीख रहे हो, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर रहे हो, right? So here we begin with the very first question. Come on everyone. Which of the following statement about OPC is untrue? मतलब कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है which is wrong, है ना? गलत स्टेटमेंट है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. द फर्स्ट वन, OPC can't be converted to Section 8 company. Second one, no minor shall become nominee in OPC.
Third, the sole member must be citizen and resident of India. Fourth, OPC is not required to conduct annual general meeting. Let me see. I am seeing scattered votes. Solid confusion दिख रहा है मुझे very first question में. So I have noted all your requests. Please थोड़ा सा सेशन पे फोकस करते हैं ना. 50 वोट्स सो फार, बड़े कम वोट्स अभी तक आए हैं, बट स्टिल हाँ, जो सही आंसर है ना उसमें सबसे कम वोट्स आपने दिए हैं अभी तक. तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड आई वुड से कि थोड़ी सी गलती यहाँ पे इंस्टीट्यूट की भी है बिकॉज दे डोंट अमेंड देयर मटेरियल. तो अभी भी बच्चे थोड़ा सा, काफी बच्चे ना पुरानी चीजों को देख के चल रहे हैं. वेल, लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. द सोल मेंबर मस्ट बी सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हु कैन फॉर्म ओपीसी? A natural person can form OPC who is a citizen of India, whether resident or otherwise. That means even a non-resident can be the sole member of OPC. उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. You need not be a resident to form one person company, and likewise a nominee can also be a non-resident and still be the nominee of OPC. ठीक है, तो ये अमेंडमेंट है. पहले रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, अब रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, तो आंसर तो आप लोगों ने सही नहीं दिया है, बट प्लीज मार्क दिस. काफ़ी सारे बच्चों को ये लगता है कि मैम अगर इंस्टीट्यूट की बुक में अभी भी पुराना वाला दिया है तो वो क्वेश्चन तो हमें बुक से ही पूछ रहे हैं और उसके बाद अगर हम अमेंडेड आंसर करेंगे तो वो तो हमारा गलत हो जाएगा. तो ऐसा नहीं होता है बेटा. द सजेस्टेड आंसर्स या फिर आई वुड से इवन द सजेस्टेड आंसर्स आर नॉट सेम एज विच इज़ प्रोवाइडेड फॉर चेकिंग. तो चेकिंग की चीज़ें अलग होती हैं, आपके सजेस्टेड और मटेरियल अलग अलग होता है. ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है. आपके इंस्टीट्यूट सप्लीमेंट्री निकालती है जिसमें वो ये बात बताते हैं कि यू हैव टू रीड द अमेंडमेंट्स. सो प्लीज़ आप अमेंडेड चीज़ों को ही पढ़ के जाएं. ओके, चलो फाइन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कम ऑन एवरीवन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस पे मुझे अच्छे आंसर्स चाहिए. बहुत फोकस के साथ काम करना, मतलब पढ़ना. Proudy Sam Limited. So it is a public company. Proudy Sam Limited has received application money of 20 lakhs. 2 lakh equity shares of rupees 10 each. On 10th October 2024 from the applicants who applied for allotment of shares in response to private placement offer of securities. So keep in mind we are talking about section number 42, private placement. क्या प्राइवेट प्लेसमेंट एक पब्लिक कंपनी कर सकती है? ऑफ कोर्स मैम. प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी डन बाय बोथ द टाइप्स ऑफ कंपनीज. प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं दे सकती है. पब्लिक कंपनी तो प्राइवेट ऑफर दे ही सकती है ना, उसमें क्या दिक्कत है, राइट? Select the latest date by which the company must allot the shares against the application money so received. So here you have to first recall the provision and thereafter you have to calculate the timeline. तो सबसे पहली बात रिकॉल करने के लिए, प्रोविजन को रिकॉल करने के लिए, व्हाट इज द प्रोविजन? सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है? एप्लीकेशन रिसीव हुई, राइट? यू रिसीव द एप्लीकेशन मनी, वॉट एवर इट इज, विद इन 60 डेज यू हैव टू अलॉट. इफ यू डोंट अलॉट, इफ नॉट, देन यू हैव टू रिफंड विद द नेक्स्ट 15 डेज. तो ये सारी टाइमलाइंस आपको याद होनी चाहिए. नाउ इफ यू रिमेंबर दिस, ऑल यू हैव टू कैलकुलेट इज 60 डेज. अब 60 डेज क्या आएगा? देखो यहां पे भी अलग कंफ्यूजन है. किसी को लगता है कि 30 डेज होगा, किसी को, हाँ, तो हम जब प्राइवेट प्लेसमेंट के सेक्शन की बात कर रहे हैं, एज यू गो टू सेक्शन नंबर 42, द टाइमलाइन गिवन ओवर देयर इज 60 डेज माय डियर. सो 60 डेज, हाउ डू यू कैलकुलेट इट? अक्टूबर में हमारे कितने दिन बचे? 21 डेज बचे. देन एंटायर 30 डेज ऑफ नवंबर कितने हुए टोटल? ये 51 ही हुए. सो वील हैव टू टेक 9 मोर डेज ऑफ दिसंबर, तब हमारे 60 डेज कंप्लीट होंगे. सो व्हाट आई कैन से इज ऑन और बिफोर 9th December 2024.
right? Please don't write answers in the chat. You can attempt for the poll. Still, मुझे लगता है maximum students have given me the correct answer. 60% students by far have given the correct answer, which is fair enough, है ना? तो चलो, अब वो समझाने के बाद दिया है या पहले दिया है पता नहीं, बट जो भी है, आई थिंक द पॉइंट हैज गॉन इन टू योर माइंड, राइट? चलो, क्वेश्चन नंबर 3, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. Now this is going to be an easy one for you, I believe, और इसमें मैं उम्मीद कर रही हूं कि कम से कम 75% बच्चे तो सही जवाब दे. So question number 3, no prospectus shall be valid if it is issued more than dash days after the date on which a copy thereof is delivered to the registrar. Simple शब्दों में कहूं तो हमसे पूछा जा रहा है what is the validity of prospectus. The prospectus has to be filed with the registrar, है ना? रजिस्ट्रेशन फाइलिंग करानी होती है तो रजिस्ट्रार को हम देते हैं, देयर आफ्टर इट इज इशूड. तो जब हमने फाइलिंग कर दी रजिस्ट्रार के साथ तो कितने दिन के अंदर अंदर इसको इशू कर देना होता है? दैट इज द अदर एंगल ऑफ लुकिंग एट इट, है ना? सेक्शन नंबर 26, प्रोस्पेक्टस. लेट मी सी भाई कैसे वोट्स चल रहे हैं. Okay, so I think the confusion is between 30 days and 90 days. हाँ, confusion इसी में चल रहा है, but here I conclude it is option D, 90 days. The validity of prospectus is 90 days. 30 days बहुत कम हो जाएंगे बेटा. आप समझो, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना कि जो हमने पूरा बैकग्राउंड पढ़ा है कि क्या होता है कैसे होता है, 30 days is going to be very less, right? So 90 days की वैलिडिटी होती है. ओके, चलो. So only 25% students have given me the correct answer, but buck up, है ना? नेक्स्ट, ये तो जो क्वेश्चन है ना आपका, नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड, आपके पहले एग्जाम में भी पूछा हुआ है. तो ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो आपको जरूर 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 आना चाहिए. इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ केस बेस्ड भी नहीं बनाया है ना. क्वेश्चन नंबर 4, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. कोई बात नहीं, अभी गलत हो रहे हैं ना. अगर अभी गलत हो रहे हैं, गॉड इज स्टिल गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई योरसेल्फ, और एग्जाम में गलत नहीं हो. तो यही तो पर्पस है इन सेशंस का ना. सही हो रहे हैं, गुड, यू आर गेनिंग कॉन्फिडेंस. गलत हो रहे हैं, यू स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी. Okay, moving to question number 4. Satisfaction of charge shall be filed within. The poll is live. Come on, everyone. Within how many days from the date of full satisfaction? 15 days, 21 days, 30 days, 300 days. Usually जब इस टाइप के questions आते हैं, even the students who know the answer get confused. क्योंकि यहाँ पे दो लिमिट आइडियली सही है. पर you have to understand कि हमसे जब पूछा जा रहा है satisfaction of charge हो गया, उसको हमें क्या करना है? रिपोर्ट करना है आरओसी को, है ना? इंटीमेट करना है. सेक्शन 82 हमारा इंटीमेशन बाय द कंपनी होता है या चार्ज होल्डर होता है. तो हम कितने दिन के अंदर अंदर कर देते हैं? जनरल लिमिट पे हम आंसर करेंगे. इफ इट इज नॉट डन विद इन दैट लिमिट, देन आरओसी कैन कंडोन द डिले, राइट? सो वो एक अलग चीज है. तो उसमें लिखा हुआ है कि हम 300 दिन तक भी कर सकते हैं. इनफैक्ट उसके बाद भी अलाउ हो जाता है. वो हम आगे जाते हैं सेक्शन 87 में. बट द जनरल लिमिट गिवन ओवर हियर इज कहां से? मतलब कुछ भी कर रहे हो क्या यार? थोड़ा सा फोकस के साथ करो. 21 डेज कहां लिखा हुआ है? 21 डेज तो चार्जेस के पूरे चैप्टर में कहीं नहीं होगा कुछ. 30 days is the correct answer, and only 36% students have given this correct answer. कोई बात नहीं, जो आपने नाम रखा है ना वो सब गलत होने के बाद भी बहुत कुछ सही हुआ है. आई होप यू गेट व्हाट आई मीन, है ना? तो नाम को आपको जस्टिफाई करना है. नाम आपने रखा है विराट कोहली, कितना कुछ गलत होने के बाद देखो क्या सही हो रहा है. तो अभी गलत हो रहे हैं ना, आगे तो सही होने वाला है. समझो, तो टाइम तो पूरा पलटने वाला है. चमकने वाले हो, ठीक है? अभी तक सारे राइट होने का घमंड है भाई. अलग अलग टाइप के लोग हैं. चलो, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ XYZ Limited contained a provision that
up to 4% of issue price of shares may be paid as underwriting commission to the underwriters. मतलब एक कंपनी है जिसके आर्टिकल्स में लिखा है कि हम अंडरराइटिंग कमीशन कितनी देंगे, 4% of issue price. The board of directors decided to pay 6% underwriting commission. State the percentage of commission that company can pay to the underwriter. तो यहाँ पे 3 रेट्स हो गए भाई, 4, 5 और 6 हमें दिए, या फिर none of these. So simple, very clear provision. Section number 40. Subsection 6, it's okay if you don't remember because mainly we are concerned with rules over here, है ना. तो read with rule 13 हमें बताता है कि मैक्सिमम कमीशन किसको कितनी दी जा सकती है टू अंडरराइटर्स. उसमें 2 रेट्स दिए रहते हैं, मतलब 2 चीजें दी रहती हैं, इन केस ऑफ शेयर्स एंड इन केस ऑफ डिबेंचर्स. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर्स. ठीक है, शेयर्स के केस में क्या लिखा है, लोअर ऑफ 5% और रेट इन आर्टिकल्स. तो रेट इन आर्टिकल्स कितना है, 4% और 5%. 5 और 4 में लोअर कौन सा है, 4. सो मैक्सिमम कमीशन दैट कैन बी पेड टू अंडरराइटर्स इज 4%. बहुत सिंपल है. देखें जरा किसने सही दिया किसने गलत दिया. फोर परसेंट भाई, 43% स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है. Okay, Santosh, you can definitely connect with the team and they'll help you. क्या मोटिवेशन है. अच्छा, सीएमए फाइनल के भी मुझे लग रहा है काफी सारे बच्चे आ गए हैं यहाँ पे, है ना. फाइनली एक सही किया, चलो अच्छी बात है. कुछ मोटिवेशन तो मिला, कुछ तो आपको एंकरेज हो गए होंगे, है ना. बेटा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी रिविजन अपलोडेड है, यू कैन चेक दैट आउट, राइट. कोई बात नहीं, इट्स ओके इफ यू आर एबल टू आंसर इवन मेरे समझाने के बाद आप आंसर कर पा रहे हो, स्टिल इट्स फाइन. क्वेश्चन नंबर 6, कम ऑन एवरीवन, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. Moving to question number 6. My concern is or my intention is to prepare you for the worst, है ना. तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकती कि बहुत इजी से आपके लिए 50 क्वेश्चन ले आओ और आप सब ऐसे फटाफट से कर लो और आपको लगे वाह वाह मेरी प्रिपरेशन तो सॉलिड है, फिर एग्जाम में आपको धक्का लगे. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. हाँ, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली. अपना जो इंस्टीट्यूट है, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जब ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं. हाउ एवर दे आस्क यू डिटेल्ड क्वेश्चंस. डिटेल बहुत पूछे जाते हैं कि जैसे ये वाला फॉर्म है, ये वाला सेक्शन नंबर किसका है बताओ, ऐसे भी पूछ लेते हैं. तो कहीं से भी एक लाइन उठा के उसका एमसीक्यू बना के आपसे पूछ सकते हैं. तो पढ़ना तो आपको डिटेल में ही पड़ेगा, ठीक है. Okay, question number 6, the poll is already live. The company may make an application to whom seeking extension of time for repayment of any deposit accepted before the commencement of Companies Act 2013. Let me give you a small hint. ये हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 74 की. जब हम डिपॉजिट्स के बारे में देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि जो डिपॉजिट्स हमने एक्सेप्ट किए थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. पहले थोड़ी ना था कि आपको 3 साल का ही हो सकता है मैक्सिमम, ये सब कुछ नहीं था. तो पहले अगर नहीं था, किसी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए थे बहुत पहले 20 साल के लिए कि हम तो 20 साल बाद आपको पैसे वापस करेंगे. कंपनीज एक्ट 2013 आई और उसने बोला नहीं नहीं, रीपे करो विद इन 3 ईयर्स. अगर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने पैसा इधर उधर लगा दिया है, देन यू कैन सीक एक्सटेंशन, बट यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर सीकिंग एक्सटेंशन. यू मेक दिस एप्लीकेशन टू होम, दैट इज द क्वेश्चन. यही तो सवाल है. चलो फाइनली कुछ तो अच्छा बढ़ता हुआ. 47% students have given the correct answer, which is option A, the tribunal. The tribunal. Okay, majority is wrong, I think. Nahi. Question number 7. A company is empowered to close its register of members for a maximum period of how many days in an year? Right, 30 days,
45 days, 60 days और 90 days. थोड़ी सी पोल कोई बात नहीं. द पोल इज नाउ लाइव फॉर क्वेश्चन नंबर 7. कम ऑन एवरीवन. बहुत ही सीधा सा सवाल है. हम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करते हैं अंडर सेक्शन नंबर 88, राइट. ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में सारे मेंबर्स की डिटेल्स हैं. द मेंबर्स कैन ऑल्सो अपडेट देयर डिटेल्स. वो वहाँ पे ट्रांसफर्स भी रजिस्टर होते हैं. समबडी मुझे अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर करना है, गिव द ट्रांसफर डीड, और वो नाम वगैरह करते हैं. बट the company has been given a power to close its register under section 91 कि थोड़े टाइम के लिए आप साल में अपने रजिस्टर को क्लोज कर सकते हो. इसमें 2 टाइम लिमिट दी हुई हैं, ठीक है. 1 टाइम लिमिट इज टोटल in an year and at one point of time. मतलब एक बार में इतने दिन से ज्यादा नहीं करना है, पूरे साल में मिला के इतने दिन से ज्यादा नहीं करना है. हमें यहां पे पूछा गया है मैक्सिमम पीरियड इन अ ईयर, मतलब पूरे साल वाला हमसे पूछा गया है. 30, 45, 60 और 90. आंसर मत लिखो यार चैट में. यस, well, the correct answer is 45 days. The correct answer is option B, 45 days. और अगर मैं एक बार की बात करूं तो not exceeding 30 days at any one point of time, ठीक है. तो 7 days नोटिस देके कंपनी कभी भी अपना रजिस्टर क्लोज कर सकती है एट वन, मतलब एक बार में 30 डेज से ज्यादा नहीं करोगे और टोटल पूरे साल में 45 डेज से ज्यादा नहीं करोगे. दैट इज व्हाट द सेक्शन सेज. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. Since the coverage is very low, if you're unable to do it, you can skip it, Archana, but I wouldn't advise any selective study. कभी कभी वो coverage को ना देखते हुए भी ज़्यादा नंबर का भी दे देते हैं. तो it is not the institute is following that strict blueprint, ठीक है. But फिर भी तो लास्ट ऑप्शन आप रख सकते हो कि first I'll cover my entire syllabus and then I'll pick it up because I know the LLP coverage is also very huge, ठीक है. चलो, question number 8. Question number 8. Again, you have to be a little updated to answer this question. For selecting the name of the company, an application for the reservation of name shall be made in which form with the fee? INC 1, Spice Plus, INC 2, or none of the above? ओके, आई कैन सी लगभग थोड़ी मेजॉरिटी बच्चे सही ही आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं. वेन एवर यू वॉन्ट टू रिजर्व योर नेम, भाई ये कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, वी हैव अ फॉर्म स्पाइस प्लस. देयर आर 2 पार्ट्स टू दिस फॉर्म, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए इज फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम, पार्ट बी इज फॉर द incorporation. We have another form that is called as run, reserve unique name. That is for existing companies. If I am an existing company and I want to change my name, then again I need to reserve my name, right? पहले हम एक नाम सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि हाँ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है. रिजर्व किया, बाकी सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह किया, उसके बाद हमने इंटीमेट कर दिया. So that is, there are 2 forms ideally for reservation of name which are prevalent in today's time. One is Spice Plus Part A and the second is Run. INC 1 नहीं है अब, ठीक है. ओके, चलो, अच्छी बात है दैट यू हैव गॉट इट राइट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पाइस प्लस. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज INC 32, ठीक है. तो स्पाइस प्लस को ही हम INC 32 भी बोलते हैं, ठीक है. चलो, क्वेश्चन नंबर 9. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. कॉपीज ऑफ एनुअल रिटर्न्स प्रिपेयर्ड and copies of all certificates and documents required to be annexed thereto, मतलब annual return उसके साथ जितने भी annexures जाते हैं, shall be preserved for a period of how many days from the date of filing with the registrar. Ideally यहाँ पे ये blank होना चाहिए, but I hope you get the intent. 8 years, 10 years, 12 years or 15 years. सिंपल हमसे पूछा जा रहा है कि प्रिजर्व कितने टाइम तक करना है. प्रिजर्वेशन के बारे में पूछा जा रहा है. सी वी हैव रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑल्सो, वी हैव रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स ऑल्सो. देन वी हैव दीज एनुअल रिटर्न्स ऑल्सो, है ना. तो हमारे पास जो सेक्शन 94 है जिसमें हम इंस्पेक्शन और प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली वी हैव अ रूल 15 विच एक्चुअली टेल्स अस ऑल दीज डिटेल्स.
तो यहां पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एनुअल रिटर्न्स. इट हैज टू बी प्रिजर्व फॉर हाउ मेनी ईयर्स. एक्चुअली आई शुड हैव गिवन यू एन ऑप्शन की परमानेंटली, बट मैंने 8, 10, 12 और 15 दे दिया. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल गेट द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन ए, 8 years. क्या कोई मुझे चार्ट में बता सकता है बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? कैन समबडी टेल मी दैट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को कितने टाइम तक प्रिजर्व करना होता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, इट हैज टू बी प्रिजर्व फॉर हाउ लॉन्ग? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे तो हमने एनुअल रिटर्न की बात की. एनुअल रिटर्न हमने फाइल की, अगले 8 साल तक हम उस वाले एनुअल रिटर्न को, उस साल के एनुअल रिटर्न को मेंटेन करके रखते, प्रिजर्व करके रखते, उसके बाद वी कैन डिस्कार्ड. बिकॉज मोस्टली जो रीओपनिंग ऑफ बुक्स वगैरह होता है वो 8 साल के पीछे का नहीं होता है ना. तो 8 साल तक ही प्रिजर्वेशन बोला गया है, बाकी उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दो. बट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के केस में क्या है? बताओ बताओ बताओ, कोई तो बताओ ना. परमानेंट. वेरी गुड सक्षम सेजल राठौर. परमानेंटली, इट हैज टू बी प्रिजर्व परमानेंटली फॉर वन सिंपल लॉजिक यार. मेंबर्स कब तक रहेंगे? जब तक कंपनी रहेगी. तो कंपनी है यार, प्रिजर्व करते रहो उसको, थोड़ी ना उठा के डिस्कार्ड कर देंगे हम. ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. द पोल शुड बी लाइव. द quorum for annual general meeting for a public company having the number of members more than 5,000 is. तो कोरम पूछा गया है, सिंपल सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन. कोरम कितना होगा? 2, 15, 30 और none of the above. What is going to be the quorum? Quorum for a public company. See, we have two types of companies. एक हमारे पास होती है प्राइवेट कंपनी और एक हमारे पास होती है पब्लिक कंपनी. सो सेक्शन 103 में हम कोरम के बारे में बात करते हैं. फॉर प्राइवेट कंपनी इट इज वेरी सिंपल, 2 members. फॉर पब्लिक कंपनी देयर आर 3 डिफरेंट लिमिट्स. 1000 के अंदर अंदर अगर मेंबर्स हैं, मतलब 1000 या उसके अंदर अंदर, तो 5. more than 1000 but within 5000, 15. more than 5000 then you have 30. तो यहां पे हमें कितना बोला गया है? नंबर ऑफ मेंबर्स इज मोर देन 5000. So more than 5000 is, so we'll go to the highest limit which has been specified, and I'm glad to see that 55% students have given me the correct answer, which is option C, 30. Yes, because we are talking about public company. Good. Chalo, I can see some improvement. Very well done. Okay, moving to the next question. Question number 11, everyone. Here you will need a little focus because a lot of time, a lot of limits are being mentioned. तो थोड़ा focus के साथ ध्यान देना है कि कैसे क्या होगा. A public company having net worth of dash or turnover of dash will be eligible company under section 76. So all you have to remember is the definition of eligible company. See, we have a private company or a public company can accept deposits from its members. So private company can accept deposits from its members only, है ना. पर एक जो public company होती है, public company अपने members से तो deposits ले ही सकती है, साथ साथ if it is eligible then it can also accept deposits from public. पर कौन होती है एलिजिबल कंपनी, वही तो पूछा गया है. सो यहां पे 4 लिमिट्स दिए हुए हैं. अ पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ नॉट मोर देन 100 crores, नॉट लेस देन 500 crores, और नॉट मोर देन 500 crores फॉर टर्नओवर. नॉट लेस देन 500 crores, नॉट लेस देन 500 crores, नॉट लेस देन 100 crores एंड नॉट लेस देन 500 crores. लेट्स सी. नॉट लेस दैन 100 crores का मतलब क्या होता है? कम से कम एक पब्लिक कंपनी की नेटवर्थ कम से कम 100 crores होनी चाहिए, या फिर टर्नओवर कम से कम 500 crore होना चाहिए. दैट इज व्हाट द प्रोविजन एक्चुअली सेज. नेटवर्थ more than equal to 100 CR, turnover more than equal to 500 CR, plus you should have obtained the consent by SR, then you become an eligible company. So what is the correct answer? Option D.
कौन सा है करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी। यार कोशिश करो, प्लीज डोंट राइट द आंसर इन द चैट, क्योंकि जो पोल अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं ना, वो बच्चे देखते हैं अरे यार ये तो 11 का डी बोल रहा है, मुझे तो ए लग रहा था, दे गेट कंफ्यूज्ड एंड दे आर नॉट एबल टू अटेंड द पोल इन एन अनबायस्ड एंड फेयर मैनर, है ना? तो वो कहीं ना कहीं उनका दिमाग दिक्कत करता है, राइट? तो प्लीज आंसर्स को चैट में मत लिखो। इफ यू राइट आंसर्स इन द चैट तो कहीं ना कहीं हम मेरे को करना क्या पड़ेगा, फिर आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पोल में ही आंसर देंगे सब, नो राइटिंग ऑफ आंसर्स इन द चैट, ठीक है? चल, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है बिकॉज ये बहुत बार ऐसे पूछा गया है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपको नहीं याद है, अगर आपको नहीं पता है, अब इसको मार्क कर लो, कीप दिस इन माइंड, राइट इट समवेयर, और समझ लो कि बस ये एक एडिशनल चीज है जो आज मुझे पता चली है और मुझे याद करके रखनी है। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर इज 18 years, 21 years, 30 years, or 70 years. If you know it, fine, you go ahead and attempt. If you know it, just mark it, and whatever I'm going to tell you, keep it in your mind. क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, कई बार जैसे अगर मैं बात करूं कि एक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वुमेन डायरेक्टर का भी, आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट ऑल्सो। तो मटेरियल में हम देखेंगे तो बस दिखेगा कि प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज हैव टू अपॉइंट अ वुमेन डायरेक्टर। तो प्रिस्क्राइब्ड कौन है ये बताया नहीं गया है, बट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो क्वेश्चंस भाई पूछ लिए जाते हैं उनको हमें देखना है। वेल, आई एम हैप्पी टू नो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को इसका करेक्ट आंसर पता है, विच इज 21 years. सो मिनिमम एज फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर इज 21 years एंड मैक्सिमम एज इज 70 years. ठीक है, मिनिमम 21, मैक्सिमम 70. Moving to question number 13. Question number 13. Question number 13 again, थोड़ा आराम से. Take a deep breath and read the question carefully. A issue house has issued an advertisement in 2 leading newspapers for selling a big number of shares allotted to it by a company. मतलब एक कंपनी है, कंपनी ने क्या किए, शेयर्स अलॉट किए, किसको? एक इशू हाउस को। और ये इशू हाउस क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है ये शेयर्स टू पब्लिक, है ना? यहां पे ये जो अलॉटमेंट हुआ था ये प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू हुआ था, और यहां पे क्या हो रहा है, द शेयर्स आर बीइंग ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक, राइट? नाउ वी हैव बीन आस्क्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द एडवर्टीजमेंट, मतलब ये जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप ऑफर कर रहे हो, दिस एडवर्टीजमेंट विल नॉट बी डीम्ड एज प्रोस्पेक्टस. वी हैव अ सेक्शन कॉल्ड एज सेक्शन 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस. वहां पे ये बोला गया है कि यार कंपनी क्या करेगी, अगर डायरेक्ट पब्लिक ऑफर देगी तो फिर बहुत सारे प्रोस्पेक्टस के प्रोविजंस लग जाते हैं एंड वी हैव टू कंप्लाई विद दैट. सो इंस्टेड व्हाट वी कैन डू इज, मतलब एक रास्ता कंपनी ने निकाला कि हम क्या करेंगे, एक इशू हाउस को दे देंगे और उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, जनरल पब्लिक को ऑफर कर देंगे, तो हमारे ऊपर प्रोस्पेक्टस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे. लगे ऐसा नहीं लगता है, अगर आपने उनको दिए और 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने पब्लिक को ऑफर कर दिए, हम उनके ऊपर डीम्ड प्रोस्पेक्टस का प्रोविजन लगा देंगे और बोलेंगे कि अब आप जिस एडवर्टीजमेंट के थ्रू दे रहे हो वो प्रोस्पेक्टस है और उसको सारे प्रोस्पेक्टस के कंप्लायंसेस मानने पड़ेंगे, है ना? दूसरा, हमने आपको शेयर्स दिए और आपने अभी हमें पैसे भी नहीं दिए, उसके पहले आपने पब्लिक को ऑफर कर दिए, मतलब आपका इंटेंशन ही यही था कि हम तो पब्लिक से पैसे उठाएंगे, वो पैसे इधर दे देंगे. ठीक है ना? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. लेट मी सी. अच्छा, वोट्स, ओके, 57% लगभग स्टूडेंट्स हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर व्हिच इज दिस. अगर ये एडवर्टीजमेंट 6 महीने के बाद हुआ है and the issue house has paid the entire consideration, then it will not be deemed as prospectus. But अगर हमने आपको दिया, आपने 6 महीने के अंदर ही अंदर दे दिया, प्रोस्पेक्टस हो गया. हमने आपको दिया जब आप पब्लिक ऑफर दे रहे हो, तब तक आपने हमारे पैसे ही नहीं दिए, इट विल बी डीम्ड एज प्रोस्पेक्टस. और यहां पे भी क्या लिखा है, विद इन 3 months, तो ये तो और ही पहले हो गया. ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी.
ऑल्दो हम एमसीक्यू सेशन कर रहे हैं, आई वांटेड इट टू बी क्विक, फिर भी मुझे लगा कि शायद आपको कंफ्यूजन हो, तो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू द एंटायर थिंग. ठीक है, चलो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14. एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 14. At every AGM, not less than dash number of total directors shall retire by rotation. 1/3, 2/3, 3/4 or half. Again, there is slight confusion in this question. थोड़ा सा confusion है इस question में. आई एम सो हैप्पी टू सी कि भाई आपके मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं इसको और इसको लेके. तो शायद कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि मैम ये क्वेश्चन में एग्जैक्टली हमसे पूछना क्या चाह रहा है. आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू. हमारे पास एक है सेक्शन 152 जिसमें हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स की, विच इज ऑफ कोर्स एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनीज. सो द डायरेक्टर्स हैव टू रोटेट. इसमें लिखा क्या है? ऑफ ऑल द टोटल डायरेक्टर्स, 2/3 of total directors shall be liable to retire by rotation. मतलब 2/3 कैसे डायरेक्टर्स होंगे? दे आर गोइंग टू बी रोटेशनल डायरेक्टर्स. दे आर गोइंग टू बी रोटेशनल डायरेक्टर्स. इसमें से 1/3 shall actually retire, shall retire and vacate office. ठीक है, बट तो मैम यहां पे क्या लिखा है? शैल रिटायर बाय रोटेशन. तो ये 1/3 होना चाहिए, पर नहीं. इंस्टीट्यूट आपसे ये पूछने की कोशिश नहीं कर रहा है. हाउ डू वी नो दैट? बिकॉज यहां लिखा है नॉट लेस देन डैश ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. तो मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि कितने ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, एंड हेंस वी विल आंसर इट टू बी 2/3. ठीक है, तो हम आंसर क्या करेंगे इसको? 2/3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. ओके, चलो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15, हाँ राउंड ऑफ तो होगा ही होगा. The sweat equity shares, the poll is live. The sweat equity shares shall be locked in for a period of dash years from the date of allotment. सिंपल, बहुत ही सीधा सा सवाल है. स्वेट इक्विटी शेयर्स कितने टाइम के लिए लॉक इन रहता है? सो इफ यू रिमेंबर यू विल बी एबल टू टेल लॉक इन पीरियड. नहीं याद है तो फिर भाई कुछ भी गेस करोगे. 1 2 3 4, 1 2 3 और 4. Sweat equity shares. I'm not talking about ESOP. I'm talking about sweat equity shares. दोनों अलग अलग है ना? देखें जरा कितने वोट्स आए. चलो, आई कैन सी कि आपको ये आंसर पता है बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर गिविंग मी द करेक्ट आंसर. सो आई एम जस्ट मार्किंग द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन C 3. Majority of the students have given me the correct answer. The PDF that I will share will have all the answers, don't worry. But यहाँ ticked वाली नहीं करूंगी, but answers last में लिखे रहेंगे. ठीक है, तो चिंता मत करो. Question number 16. Moving to the next question. Question number 16. इसमें भी I need to explain you certain thing. कुछ समझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे अलग ही कंफ्यूजन में चले जाते हैं. Which one cannot be transacted through postal ballot? Appointment of auditor, election of a director, buyback of shares by a company, and change in place of registered office outside the local limits of any city, town or village. 4 options दिए हैं. थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ. टिल द टाइम द पोल इज लाइव एंड यू कैन रजिस्टर योर ओन आंसर. ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आप बिल्कुल रिकॉर्ड कर लो. सेक्शन 110 हमें पोस्टल बैलेट के बारे में बोलता है. इसमें पहले आता है सम मैटर्स wherein पोस्टल बैलेट इज मैंडेटरी, है ना. कुछ मैटर्स जहां पे पोस्टल बैलेट एकदम मैंडेटरी है, जैसे बायबैक होता है, जैसे वेरिएशन इन राइट्स होता है, जैसे चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट्स. तो ये सारी चीजें क्या है? मैंडेटरी है. भाई पोस्टल बैलेट ही कराना पड़ेगा. मतलब अगर आपको वोटिंग करानी है तो आपको पोस्टल बैलेट से ही करानी है.
ये पोस्टल बैलेट सिर्फ 2 तरीके की कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं होता है, एक ओपीसी और दूसरा वो कंपनीज जिसमें 200 के अंदर अंदर मेंबर्स हो, 200 या उसके अंदर अंदर, है ना। उसके अलावा सारी कंपनीज के लिए क्या हो जाता है, ये मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, बाकी जो बचे हुए मैटर्स हैं उनके लिए आप चाहो तो पोस्टल बैलेट करा सकते हो, हाउ एवर ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए पोस्टल बैलेट नहीं करा सकते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए पोस्टल बैलेट नहीं करा सकते हैं। अब कंफ्यूजन शुरू होता है भाई, जिसने कुछ पढ़ा नहीं है उसको तो सब चीजें ठीक ठाक लग रही होंगी, बट जिसने थोड़ी बहुत भी चीजें की हैं उसको लग रहा होगा कि मैम एक बात बताइए, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर is an ordinary business and election of director is also an ordinary business. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर दोनों ही तो क्या होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस ही होते हैं। और आप बोल रहे हो ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए पोस्टल बैलेट नहीं होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस या जहां पे भी डायरेक्टर या ऑडिटर की सुनवाई का हक है वहां के लिए पोस्टल बैलेट नहीं होता है। तो मैम ये तो दो आंसर करेक्ट हो जाएंगे, नहीं, ये आंसर सही है, ये आंसर सही नहीं है, फॉर सिंपल रीजन इंस्टीट्यूट अपने बुक में सिर्फ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर लिखती है। आइडियली इट इज इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 151 ऑफ द एक्ट, जहां पोस्टल बैलेट मैंडेटरी होता है। ये हमारा है एसएसडी, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो ये आपका क्वेश्चन जो है आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में 2-3 बार आ भी चुका है, बट यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज। द करेक्ट आंसर इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज अ मैटर ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस और इसके लिए पोस्टल बैलेट, सिर्फ पोस्टल बैलेट नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। An instrument of the proxy shall be deposited with the registered office of the company dash before the conduct of the meeting। चलो, फाइनली थोड़ा इजी सा क्वेश्चन आया है और मैं उम्मीद करती हूं कि इसका आंसर सारे के सारे बच्चे मेरे सही देने वाले हैं, है ना। जो प्रॉक्सी का इंस्ट्रूमेंट है, मीटिंग के कितने टाइम पहले तक, मतलब मीटिंग बिगिन होने वाली है उसके कितने टाइम पहले तक हमें डिपॉजिट कर देना होता है? 7 घंटे पहले, 21 आवर्स पहले, 48 आवर्स पहले या 60 आवर्स पहले? यस, क्या बात है, वेरी 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 वेल डन। 89% स्टूडेंट्स ने इसका दिया है बिल्कुल सही जवाब। अब हम उम्मीद करेंगे कि यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कितना अच्छा रहेगा। 48 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। 48 आवर्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। In case of an adjourned meeting, the company shall give not less than how many days notice to the members? 1 day, 3 days, 7 days or none of the above? See, section 103 में क्या होता है, हम quorum के बारे में पढ़ते हैं, and at times when the quorum is not present, the meeting is adjourned. The meeting is adjourned to same day, same place, same time of next week, है ना, और the board may decide, ठीक है। इसकी हमें क्या करनी होती है, नोटिस देनी होती है एडजर्न मीटिंग की। हम कितने दिन की नोटिस देते हैं? नोटिस हम इंडिविजुअली भी दे सकते हैं, वी कैन गिव इट थ्रू एन एडवर्टीजमेंट ऑल्सो, बट एक स्पेसिफाइड है कि कम से कम इतने दिन पहले तो बताओ यार। तो कम से कम 1 दिन की, 7 दिन की बहुत ज्यादा हो रही है और 1 दिन की बहुत कम हो रही है, तो बीच का ठीक ठीक लगाते हैं एंड करेक्ट आंसर मार्क करते हैं, विच इज 3 days, है ना। अच्छा, सो लगभग 55, पहले थोड़े ज्यादा थे, थोड़े कम हो गए, 55 days, 55% students have given me the correct answer, which is 3 days. So you need to give 3 days notice, right? Chalo, moving to question number 19. A poll demanded on any question shall be taken when? From the time when the poll demand was made. Immediately, 12 hours, 24 hours or 48 hours. सेक्शन 109 में, ये भी सेक्शन 109 का ही क्वेश्चन है हमारा, सेक्शन 109। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या है, हु कैन डिमांड पोल? सो देयर आर सर्टेन
पर्सन्स, मतलब एलिजिबिलिटी आपकी बनती है कि कम से कम आप लोग इतने लोग हो तो आप डिमांड कर सकते हो पोल. वी विल लुक एट दैट इन क्वेश्चन नंबर 20. बट अगर पोल डिमांड की जाती है तो पोल को कब कैरी आउट किया जाता है? सी आई विल टेल यू वन थिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो इमीडिएटली आंसर कर रहे हैं. पहला वाला जो है, मान लो हमें 4 मैटर्स डिस्कस करने हैं. ठीक है, हमें 4 मैटर्स डिस्कस करने हैं एक मीटिंग में. पहला मैटर हमने डिस्कस किया, लोगों को लगा नहीं नहीं शो ऑफ हैंड्स वाली वोटिंग जच नहीं रही है, पोल कराइए पोल कराइए पोल कराइए. पोल का प्रोसीजर बहुत लंबा होता है. पोलिंग पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करो, स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करो, ये वो. पूरी उन्होंने पोल करा के मैटर को खत्म किया, क्योंकि आपके हिसाब से पोल कब होनी चाहिए? तुरंत होनी चाहिए. तुरंत कर दी. दूसरा मैटर डिस्कस हुआ, उस पर भी लोग भड़क गए और बोले पोल कराओ पोल कराओ पोल कराओ. फिर पूरा प्रोसेस होगा, ये तो ठीक नहीं लग रहा है. सो व्हाट एक्चुअली कैन बी डन इज चेयरमैन कैन डेफर इट. उसने कहा ठीक है, आपको पोल करानी है, अभी पोल कराते हैं. उन्होंने सारे मैटर्स देखे, उन्होंने कहा किसमें किसमें क्या क्या चीजें थी, फिर उन्होंने पोल कराई. सो पोल एक्चुअली कैन बी डन विद इन 48 आवर्स. पर चेयरमैन को इलेक्ट करना है. एक जन ने हाथ उठाया, वो इलेक्ट हो गया, बाकी लोगों ने कहा नहीं नहीं पोल कराओ, ये चेयरमैन हमें ठीक नहीं लग रहा है. अब जब तक चेयरमैन ही इलेक्ट नहीं होगा तब तक मीटिंग कैसे आगे बढ़ेगी? तो चेयरमैन के इलेक्शन की और एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग की, अगर इन 2 मैटर्स पे पोल डिमांड की जाती है, दैट पोल इज टेकन इमीडिएटली. भाई तुरंत करानी पड़ेगी. लोग बोल रहे हैं एडजर्नमेंट करो, हम बोल रहे हैं अभी रुको. अरे एडजर्न करने को बोल रहे हैं मीटिंग बाद में कंटिन्यू करेंगे. तो तुरंत पोल करानी पड़ेगी ना. तो ये 2 मैटर्स की पोल इमीडिएटली होती है, बट इन जनरल द पोल इज कैन बी कंडक्टेड विद इन 48 आवर्स. समझ में आई बात? तो भैया आंसर तो आप लोगों ने थोड़ा स्कैटर्ड तरीके से ही दिया है, बट आई होप अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप सही देखे आओगे, है ना. 48 आवर्स इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. अगेन अ क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 109 ओनली. हम पोल की ही बात कर रहे हैं. हु कैन डिमांड पोल? ये कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज विद शेयर कैपिटल, कंपनीज विदाउट शेयर कैपिटल. विद शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो होल्डिंग 1/10 ऑफ वोटिंग पावर और होल्डिंग 5 लाख के शेयर्स. तो मतलब कलेक्टिवली 4 मेंबर्स हैं, चारों मिला के 5 लाख के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं. ठीक है, आप डिमांड कर सकते हो पोल. आपके पास अगर 1/10 वोटिंग पावर है, आप डिमांड कर सकते हो पोल. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनीज विद शेयर कैपिटल. विदाउट शेयर कैपिटल के केस में क्या होता है? चलो जल्दी, क्योंकि अगर इससे ज्यादा मैं कुछ बताऊंगी तो मैं आपको आंसर ही बता दूंगी, है ना. चलो, सो लगभग वोट्स अभी आप लोग के बड़े कम से आए हैं. मुझे लग रहा है आप लोग को सॉलिड कंफ्यूजन हो रहा है. विदाउट शेयर कैपिटल में क्या होता है? सिंपल. इफ यू हैव 1/10 ऑफ वोटिंग पावर, दैट्स इट, बिकॉज यू विल नॉट हैव पेड अप कैपिटल. तो पेड अप कैपिटल अगर नहीं होगा तो ये वाला और ये वाला तो ऑप्शन ही कट गया ना, बिकॉज द कंपनी इज विदाउट शेयर कैपिटल. तो ये तो नहीं होगा. ये तो कॉमन सेंस है, हम समझ गए. अब यहां पे 1/5 है, यहां पे 1/10 है. द करेक्ट आंसर इज दिस. द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 20 इज डी. ठीक है, बी नहीं होना चाहिए. जिसने भी बी मार्क किया है वो एक बार 2 मिनट ठहर के सोचे कि क्या मैं सच में क्वेश्चन को समझ पा रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंपनी विच डज नॉट हैव शेयर कैपिटल. और मैं बोल रहा हूं कि एक ऐसा मेंबर जिसके पास 5 लाख का पेड अप कैपिटल होगा वो पोल डिमांड कर सकता है. रियली? द कंपनी डज नॉट हैव शेयर कैपिटल, हाउ विल अ मेंबर हैव शेयर कैपिटल? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21. अरे वाह, ये तो मुझे लगता है बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन है ना. और इसका आंसर गलत मत देना. अ कंपनी शैल बी अ स्मॉल कंपनी ओनली if its paid up share capital does not exceed dash and its turnover does not exceed dash. तो कितना होना चाहिए पेड अप कैपिटल और टर्नओवर? 2 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 50 लाख, 2 करोड़, 4 करोड़, 40 करोड़. क्या है भाई आंसर? सही जवाब क्या है? प्लीज इंस्टीट्यूट की बुक में क्या दिया है मत देखना. इंस्टीट्यूट अपनी बुक को अमेंड नहीं करती है, बट आपसे उम्मीद करती है कि आप अपडेटेड ही पढ़ें. ओके,
सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अरे इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन. द करेक्ट आंसर इज 4 करोड़ एंड 40 करोड़. सेक्शन 2 क्लॉज 85 स्मॉल कंपनी का हमें बोलता है कि पेड अप कैपिटल, मतलब a company is a small company if its paid up capital does not exceed 50 lakh or such higher sum as may be prescribed. So paid up capital के लिए higher sum क्या prescribed है? 4 crores. Likewise, turnover should not exceed 2 crores or such higher sum as may be prescribed. What is the current prescribed limit for turnover? 40 crores. So ultimately हमारे पास लिमिट क्या आ जाती है? 4 करोड़ एंड 40 करोड़. ठीक है, याद रखना. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22. द एसेंट और डिसेंट received after how many days in postal ballot from the date of issue of notice shall be treated as if no reply has been received from the member. भाई तो हम पोस्टल बैलेट तो करा लेते हैं. अभी हमने ऊपर देखा सेक्शन 110 में हम पोस्टल बैलेट करा रहे हैं. तो हम क्या करते हैं पोस्टल बैलेट में? बैलेट पेपर सारे मेंबर्स को भेज दिया और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो रिप्लाई करेंगे. आई एग्री, आई डिसएग्री, मतलब एसेंट और डिसेंट, राइट. सो वॉट एवर दे आर रिप्लाइंग, वो एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो, उनको भेजना होता है. अब मैं एक मेंबर हूं, मेरे पास बैलेट पेपर आया, टाइम वाइम था नहीं, मैंने उसको ड्रॉअर में रख दिया. 4 महीने बाद मैंने उसको खोल के देखा, अरे यार ये तो वोटिंग के लिए आया था कंपनी का, फिर मैंने दिया और भेज दिया. 4 महीने बाद उनको वो मिला, क्या मेरी वोट्स काउंट होंगी? मान लिया जाएगा यार कि तुमसे कोई रिप्लाई नहीं आया था. तो हम कितने दिन तक वो इंतजार करते हैं? डू दे वेट फॉर जस्ट 3 days? ना, इतना कम तो नहीं होगा. 7 days ये भी नहीं होगा. 30 days या 45 days ये कुछ हो सकता है ना. तो अब इन दोनों में से मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन होना चाहिए. बाकी 7 days इतनी जल्दी बैलेट पेपर्स नहीं आते. मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स नहीं है. डायरेक्टर्स से हम जल्दी जल्दी रिप्लाई ले लेते हैं. जब हम सर्कुलेशन से बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं तो वहां पे 7 days के अंदर अंदर ही रिप्लाई आता है. बट मेंबर्स है तो मेंबर्स से तो यार. What is the correct answer? The correct answer is option C, 30 days. Option C, 30 days. ठीक है, चलो. क्वेश्चन नंबर 23. अगेन जैसे मैंने आपको कहा था ना कि वुमेन डायरेक्टर का में प्रोविजन एक क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन नंबर 23 की पोल तो लाइव हो रही है, बट अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है ऑल यू हैव टू डू इज मार्क इट and keep it in mind कि एग्जाम के पहले मुझे ये पढ़ के जाना है. ओके, व्हाट इज द पेड अप शेयर कैपिटल फिक्स्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर? 100 crores, 300 crores, 500 crores or none of the above. Listed company plus company with paid up capital of more than equal to 100 crore or turnover of more than equal to 300 crore has to appoint a woman director. मतलब कोई भी लिस्टेड कंपनी है तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पैनल में एक वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है. अगर आप एक ऐसी कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 101 करोड़ है या 100 करोड़ भी है तो भी आपके पास एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए. अगर आपका टर्नओवर 300 करोड़ है आपके पास एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए. ओके, सो यहां पे पूछा गया है पेड अप कैपिटल के बारे में and which is 100 CR. So the correct answer would be option A, 100 CR. And I'm glad to know that 55% students have given me the correct answer. बहुत बढ़िया. चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. जो अगले 2 क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से वो है ट्रिकी है, बाकी तो उसके बाद बड़े एकदम मक्खन जैसे क्वेश्चंस हैं. ठीक है. A company bought back. Listen to me very carefully बच्चों. A company bought back 10% of its equity shares in August 2020. Due to certain miscalculations during the first buyback, it again मतलब bought back another 10% equity shares in September 2020. पहले आपने अगस्त में खरीदा और उसके बाद फिर से सितंबर में खरीदा. क्या आप ऐसा कर सकते हो? It can do so subject to fulfillment of other conditions because maximum buyback 25% हो सकता है. It cannot do so because there must be a gap of 12 months between the 2 buybacks.
It can buy back within 1 year, but the company need to pass OR. ठीक है. It can buy back within 1 year, but the company will have to pass SR. मैं आपको एक हिंट देती हूं कि ये दो ऑप्शन तो पक्का ही नहीं है. SR, OR इन सब से काम तो नहीं चलता है. ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से दिमाग लगाओ और सोचो कि क्या हो सकता है. बायबैक की आपने बहुत सारी कंडीशंस पढ़ी हैं कि बायबैक हम तभी कर सकते हैं व्हेन इट इज ऑथराइज्ड बाय आवर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ये भी पढ़ा है कि बायबैक इज नॉट गोइंग टू एक्सीड 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, राइट. बट एक चीज और पढ़ी है, नो बायबैक within 1 year from the date of closure, starting भी नहीं, closure of preceding offer of buyback. भैया 1 साल के अंदर अंदर आप दोबारा तो बायबैक कर नहीं सकते. तो क्या ये बायबैक सही है? भले ही आपके 25% की लिमिट के अंदर अंदर है, फिर भी ये बायबैक सही नहीं है, because there has to be a gap of 1 year between the two buybacks. So what will be the correct answer? Option B. और आपने भी ठीक ठाक दिया है. 53% students have given me the correct answer and I'm happy to see that. Moving to the next question, question number 25 everyone. Question number 25. SLJ Private Limited, it is a private company, was incorporated on 27th August 2020 with 30 persons as subscribers. ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी है, 30 लोगों के साथ बन सकती है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है. To the memorandum of association with authorized capital of 1 CR divided into equal number of shares of ₹1 each. ठीक है. Each subscriber subscribed to 1 lakh shares. That is also fine. Advise the company about the company. वाह, हे काट दो यार. Advise the company by what date it needs to deliver the share certificates to the subscribers. So एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी शेयर सर्टिफिकेट तो देगी अपने सब्सक्राइबर्स को. देयर आर 30 सब्सक्राइबर्स. अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, कब हुई है? 27 अगस्त को. सो व्हाट वी नीड टू रिकॉल इज द टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स. सेक्शन 56 सब सेक्शन 4. ठीक है. अब इसमें बहुत सारी लिमिट्स दी हुई हैं. पहली लिमिट कि जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो हम सब्सक्राइबर्स को शेयर सर्टिफिकेट्स कितने टाइम के अंदर अंदर देते हैं. उसके बाद कंपनी का जब अलॉटमेंट करती है, कंपनी ने कभी फर्दर प्राइवेट प्लेसमेंट किया, कुछ भी किया, तो अलॉटमेंट जब करती है तब कितने टाइम लिमिट के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट्स देते हैं. अगर डिबेंचर्स इशू करते हैं तो डिबेंचर सर्टिफिकेट कितने दिन के अंदर अंदर देते हैं. अगर कोई ट्रांसफर होता है तो उस केस में हम कितने दिन के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट्स देते हैं. ट्रांसफर हुआ तो 1 मंथ का है टाइम लिमिट. अगर हम डिबेंचर्स की बात करें तो 6 मंथ्स की टाइम लिमिट है. ठीक है. अब बात आती है अलॉटमेंट की बात करें तो उसमें 2 मंथ्स है. अब बात आती है जो हमारा गिवन केस है कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है और सब्सक्राइबर्स को हमें शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है. 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको करना होता है. अब 2 मंथ्स लिखा है. 2 months does not mean 60 days that you will eventually calculate the dates. No, my dear. 2 months straight away. 27th August है ना, September and October. The correct answer is option C. 27th October 2020. ठीक है. कम वोट्स आए थे अभी तक. मुझे लग रहा है आप लोग डीपली मेरी बात सुन रहे थे, विच इज गुड that you're trying to understand every question और हर aspect आप समझने की कोशिश कर रहे हो. But I'm also happy to see कि चलो. Okay, after I've explained, I'm glad you are participating in the poll. Okay, moving to the next question, question number 26. अब देखो 26, 27, 28, 29 और 30 इतने से बस हमारे क्वेश्चन बचे हैं जो मैं डिस्कस करने हैं. उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस के मैंने कुछ MCQs दे रखे हैं आपको, और ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं. ठीक है, इतने ज्यादा दिखाऊंगी नहीं. क्वेश्चन 26 की पोल इज ऑलरेडी लाइव. हर लिस्टेड कंपनी
every listed company shall file with the registrar a copy of the report on each annual general meeting within how many days of the conclusion of AGM. तो AGM के कंक्लूजन के बाद कितने दिन के अंदर अंदर हमको ये रिपोर्ट फाइल करनी होती है. फॉर द वंस हु आर अनएबल टू रिकॉल द प्रोविजन, भाई एक आप सेक्शन पढ़ते हो, सेक्शन 121, सेक्शन 121, ठीक है. उसमें हम पढ़ते हैं अबाउट रिपोर्ट ऑन एजीएम विच इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज बट सर्टेन कंपनीज, है ना. यूजुअली क्या होता है यार, मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग बन गए, मिनट्स ऑफ मीटिंग बन गए काफी है, पर ये रिपोर्ट ऑन एजीएम ओवर एंड अबव होती है. भाई एजीएम की पूरी करेक्ट समरी इसमें बन के जाती है और आपको ये फाइलिंग करनी होती है. कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर करनी है, कितने टाइम पीरियड. एक और हिंट दे देती हूँ यार, अगर फॉर्म किसी को याद है तो MGT 15 फॉर्म होता है. कितने टाइम पीरियड, ये मुझे लग रहा है प्योर तुक्का लगा रहे होगे. अरे नहीं यार, गुड गुड गुड. 61% स्टूडेंट्स ने दिया है इसका सही जवाब विच इज 30 डेज. गुड, 30 डेज. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. अभी हमने प्रॉक्सी के बारे में पढ़ा था, अब हम इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी के बारे में पढ़ रहे हैं. तो प्रॉक्सी की टाइम लिमिट कितनी थी? इफ यू वांट टू डिपॉजिट योर प्रॉक्सी फॉर्म, आप 48 आवर्स पहले तक आपको करना पड़ेगा, है ना. उसके बाद आप करोगे कि मतलब मीटिंग में सिर्फ 10 घंटे बचे और आपका प्रॉक्सी फॉर्म आ रहा है, वो प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड नहीं होगा. कम से कम 48 आवर्स पहले तो जाए. अब ये हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी. मतलब आप इंस्पेक्ट तो कर सकते हो, वो तो 24 आवर्स की चीज रहती है, बट अगर यू वॉन्ट टू इंस्पेक्ट यू हैव टू गिव अ नोटिस दैट आई हैव द इंटेंशन ऑफ इंस्पेक्टिंग. वो नोटिस आपको कम से कम कितने दिन पहले देनी पड़ती है? 3 डेज पहले, एटलीस्ट 3 डेज पहले, या मैक्सिमम 3 डेज पहले, या एटलीस्ट 7 डेज पहले, या मैक्सिमम 7 डेज पहले. तो अगेन मैं आपको ये बता दूं, ये दोनों ऑप्शन गलत है. ये दोनों ऑप्शन तो क्या है, गलत है. जैसे हम लोग KBC खेलते थे ना, उसमें 50-50 लाइफ लाइन लेते थे, तो 2 ऑप्शन हट जाते थे. सो 2 ऑप्शंस हैव बीन रिमूव्ड. मत आंसर देना उसका. बहुत सारे बच्चों ने एक्चुअली दिया भी हुआ है 20. हाँ, अब तो मत दो यार. चलो, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? I'm giving you some time to record your votes. Okay. हाँ, तो आई कैन से 46%, 47% लगभग बच्चों ने दिया है सही जवाब, विच इज एटलीस्ट 3 days. सो यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3 days नोटिस इफ यू वांट टू इंस्पेक्ट द प्रॉक्सी फॉर्म. ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 फॉर्म्स के बारे में बात करता है. एंड लेट मी टेल यू, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर ऑफ चार्जेस, ये जितने भी फॉर्म्स है ना, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है. तो चार्जेस वाले जो फॉर्म्स हैं, हार्डली कुछ फॉर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब बस इतना ही है, और CHT बस ऐसे ही है हमारा. तो ये फॉर्म क्या है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है फॉर्म नंबर, तो चार्जेस वाले चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे गए हैं. तो ये ध्यान में रखो तो अच्छी बात होगी. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज शैल बी इशूड बाय द रजिस्ट्रार इन CHG 4 जो है ना, इसमें हम इंटीमेट करते हैं. जैसे हमारा कोई प्रॉपर्टी थी, उस पे हमने चार्ज क्रिएट किया, मतलब हमने इस प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में देके एक लोन लिया था, वो लोन हमने रीपे कर दिया, मतलब द चार्ज हैज बीन सेटिस्फाइड. अब ये चार्ज सेटिस्फाई हो गया, हमको ROC को बताना होता है, तो हम इंटीमेट करते हैं CHG 4 में ROC को, और ROC हमें एक सर्टिफिकेट देता है फॉर satisfaction of charge, that your satisfaction of charge has been registered. वो फॉर्म किस पे देता है, वो किस फॉर्म में देता है, वो हमसे पूछा गया है. अब तो बता दो. CHG 1 तो क्रिएशन के लिए होता है, CHG 2 होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज. जब हम चार्ज क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद हम ROC को बताते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हमने सिक्योरिटी के रूप में दिया है, मतलब चार्ज क्रिएट किया है, वो चार्ज रजिस्टर कर रहे हैं.
अभी हम बात कर रहे हैं सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज को रजिस्टर करने की. सो द करेक्ट आंसर इज फॉर्म CHG 5. फॉर्म CHG 5 45% स्टूडेंट्स का सही जवाब. क्वेश्चन नंबर 29. भाई जोश एकदम भी ठंडा नहीं होना चाहिए. लास्ट 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग फॉर द सेशन. क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इजी क्वेश्चन है. इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज, general meeting may be called by giving not less than how many days notice. जो ये पोल आंसर कर देगा वो क्या करेगा, चैट में लिखेगा फॉर द नॉर्मल टाइप ऑफ कंपनीज, मतलब एक कंपनी को जनरल मीटिंग बुलाने के लिए कितने दिन की नोटिस देनी होती है नॉर्मल कंपनी को. नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 कंपनी का तो आप आंसर करोगे यहाँ पे पोल में, और बाकी मैं देखती हूँ कि चैट में किसको किसको याद है. अरे यार कहाँ चले गए. क्या बात है, वेरी गुड. 21 क्लियर डेज. डोंट से 21 डेज, इट इज ऑलवेज 21 क्लियर डेज. यहां पे 14 डेज है. ठीक है, हाँ यहां पे आंसर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का, इट्स 14 डेज. आई एम सो हैप्पी टू सी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑल्सो, कि बच्चे लिख रहे हैं. नहीं तो बच्चे सोचते हैं कि यार क्या फायदा मेरे लिख के क्या होगा, बट यू डोंट नो हाउ इट इफेक्ट्स योर ओन सेल्फ. ठीक है, सो आई एम हैप्पी टू सी दैट एक्टिव पार्टिसिपेशन, कितने सारे बच्चे लिख रहे हैं. मोर ओवर किसी से क्या 210 डेज भी लिखा गया है, बट वो गलती से लिखाया है. आई नो दैट. ठीक है, अच्छा अच्छा. मैं थोड़ी सी चैट ऊपर जा रही हूँ तो मुझे दिख रहा है एक रितम चक्रवर्ती ने पूछा है, मैम व्हाट अबाउट 50 lakhs एंड 2 crores विच इज मेंशन्ड इन योर चार्ट बुक. तो भाई देखो चार्ट बुक में ना दोनों लिमिट लिखी जाती है, क्योंकि आज भी 50 lakhs और 2 crores की लिमिट रेलिवेंट है. जब हम स्मॉल कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो सेक्शन 2 क्लॉज 85 बोलता है 50 lakhs और सच हायर सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. तो ये जो प्रिस्क्राइब्ड वाली लिमिट है वो है 4 करोड़, ये अभी भी इंटैक्ट है. तो अगर आपके पास चार्ट बुक है, अगर आपने क्लासेस लिए हैं, तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा बच्चे. और अगर नहीं भी तो भी आप उन चीजों को देख सकते हो, वापस से रिव्यू कर सकते हो कि स्मॉल कंपनी की पूरी डेफिनेशन क्या है. इट इज नॉट जस्ट 4 करोड़ एंड 40 करोड़. तो लगता है यार 50 लाख और 2 करोड़ तो गलत है. नहीं नहीं नहीं, आपको पूरा एंगल समझना है. ठीक है, चलो. Here comes the last question. Question number 30. The poll is live. If the AGM is not held as per the provisions of section 96, who may make an application to whom? यहां पे रोल आता है सेक्शन नंबर 97 का, कि भैया अगर एजीएम कंपनी लोग करा ही नहीं रहे हैं एजीएम, बेचारे कुछ लोग परेशान हैं. मैं बोलने जा रही थी कौन परेशान है. कौन परेशान होता है एजीएम नहीं होता है तो मेंबर्स परेशान होते हैं. अब मेंबर्स परेशान है, मेंबर्स किसका जाके दरवाजा खटखटा सकते हैं कि कुछ करिए, इस कंपनी को बोलिए कि कंपनी अपनी एजीएम कराए. हो सकता है एजीएम इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे, मेंबर्स ही नहीं आ रहे, कोरम नहीं मिल रहा है, एजीएम नहीं हो पा रही है. तो ये भी डायरेक्शन दिया जा सकता है कि अगर एक बंदा भी आएगा, कॉन्स्टिट्यूट दैट एज कोरम, उसको कोरम आप मान लो और एजीएम करा दो. पर ये कौन करता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर नहीं एप्लीकेशन लेके जाता है, एप्लीकेशन लेके मेंबर ही जाता है. पर ये मेंबर किसके पास एप्लीकेशन लेके जाएगा? हु हैज द पावर टू कॉल एजीएम? हु हैज द पावर टू कॉल एजीएम? ट्रिब्यूनल और द सेंट्रल गवर्नमेंट? वेल, द करेक्ट आंसर इज ट्रिब्यूनल. एनी मेंबर, द ट्रिब्यूनल. यस, ट्रिब्यूनल. ठीक है, तो इसके साथ हमारे 30 क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं. प्लीज शेयर योर स्कोर्स की कैसा रहा, कंपनी लॉ वाज बेटर या फिर आपको लगता है कि इंडस्ट्रियल लॉज में योर स्कोर्स वर बेटर. ऑफ कोर्स यू हैव टू कंसिडर द परसेंटेज. मतलब यहाँ पे आज हमने सिर्फ 30 क्वेश्चंस किए हैं, वहाँ पे हमने 40 क्वेश्चंस किए थे. राइट, देयर आर 20 मोर क्वेश्चंस रिमेनिंग. प्लीज उसको भी जरूर करना, दे आर कंपेरेटिवली द ईजियर वंस. ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो वो क्वेश्चन. सो आफ्टर द सेशन एंड्स
वो करके ही उठना यार, क्यों मतलब 10 मिनट लगेगा आपको, मेरे साथ डिस्कशन करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है बिकॉज आई एक्सप्लेन यू एवरी क्वेश्चन, बट आप वैसे करोगे तो आपको और कम टाइम लगेगा, तो वो इजी से क्वेश्चन है, करके ही उठना। लेट्स सी 22 अनिका, नॉट बैड। मुस्कान 20, अरिजीत 20, गुड गुड गुड। सौजन्या 25, वेरी वेल डन। Ma'am, you also mentioned 10 crore and 100 crore for small company. Again, that is correct. क्यों? क्योंकि CG has the power to prescribe up to 10 crores for paid up capital. But CG ने वो power exercise करके prescribe क्या किया है? सिर्फ 4 crores. Likewise, CG has the power to prescribe up to 100 crores for turnover. ठीक है? तो वो भी है, बट जब हम स्मॉल कंपनी को चेक करते हैं तो करंट जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से ही चेक करते हैं। ठीक है, चलो 15, 16, 17, भाई जिसके थोड़े से 10 के भी बिलो आए हैं उनको बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जिनके 20 या उसके ऊपर आए हैं, गुड, मतलब 25 के ऊपर आए हैं तो आप अच्छे जा रहे हो, 20 के ऊपर आए हैं आप ठीक जा रहे हो, यू हैव ब्राइट चांसेस। और 10 से 20 में आए हैं तो ठीक है यार, और मेहनत करो। और 10 के नीचे आए, यू नीड टू रीथिंक, बहुत 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 ज़्यादा वाला एफर्ट लगने वाला है। ठीक है, चलो विराट कोहली ने भाई छक्के छक्के लगा दिए हैं, क्योंकि उनके सिर्फ पहले 5 क्वेश्चंस रॉन्ग थे, बाकी फिर उन्होंने एकदम तूफान मचा दिया है। चलो, ग्रेट टू हियर फ्रॉम एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, है ना। आखिरी सेशन हमारा एमसीक्यू का कमर्शियल लॉस का होने वाला है, उसके बाद हम और लाइव सेशन के साथ आएंगे वेयर वी विल डिस्कस कि हाँ लॉन्ग आंसर वगैरह कैसे लिखने चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, और कल अच्छे से रिवाइज कर लेना कमर्शियल लॉस, बिकॉज डे आफ्टर टुमारो वी आर मीटिंग फॉर दिस नेक्स्ट सेशन, राइट। थैंक यू एवरीवन।